شیراز کے دوران تفتیش کئی چونکا دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ بتایا کہ جگہ کی نشاندہی بھی کروا سکتا ہوں، یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ مصطفیٰ پر ارمغان کے بنگلے کے کس کمرے میں تشدد کیا گیا۔ دوسری جانب محکمہ صحت نے بھی مقتول مصطفیٰ کی قبر کشائی کے لیے بورڈ تشکیل دے دیا ہے۔ 21 فروری کو قبر کشائی ہوگی، مزید اس رپورٹ میں۔ مصطفیٰ پر ارمغان کے بنگلے کے کس کمرے میں تشدد کیا گیا، کس طرح گاڑی میں بلوچستان لے جا کر جلایا گیا، شریک ملزم شیراز کے دوران تفتیش سنسنی خیز انکشافات۔ مصطفیٰ قتل کیس ملزم شیراز کی پولیس انٹروگیشن رپورٹ سامنے آ گئی۔ شیراز نے دوران تفتیش بہت کچھ اگل دیا، بتایا کہ ارمغان کے ساتھ مل کر یہ کام کیا، تاہم مصطفیٰ کی والدہ کو جو تاوان کی کال اور میسیج انٹرنیشنل نمبر سے آئے وہ ارمغان نے کیے یا کسی اور نے، مجھے علم نہیں۔ مجھے پولیس نے 14 فروری کو کورنگی روڈ سے گرفتار کیا، میں پہلی مرتبہ گرفتار ہوا۔ اس واقعے سے پہلے میرے پر کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی لاش گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر بلوچستان کے علاقے دریجی لے کر گئے، گاڑی اور لاش کو جلا دیا۔ جہاں گاڑی کو جلایا اس مقام کی نشاندہی بھی کروا سکتا ہوں۔ ارمغان کے بنگلے میں جس جگہ مصطفیٰ پر تشدد ہوا اس کی نشاندہی بھی کروا سکتا ہوں۔ مار پیٹ سے مصطفیٰ کا خون نکلا جسے ارمغان نے اپنے ملازمین سے صاف کروایا تھا۔ دوسری جانب محکمہ صحت نے مقتول مصطفیٰ کی قبر کشائی کے لیے بورڈ بھی تشکیل دے دیا۔ پولیس سرجن کراچی ڈاکٹر سمیہ کی سربراہی میں 21 فروری کو قبر کشائی ہوگی۔ 3 رکنی بورڈ میں ڈاکٹر سنی چند اور MLO ڈاکٹر کامران خان بھی شامل ہوں گے۔ قبر کشائی جوڈیشل مجسٹریٹ کی موجودگی میں ہوگی۔ مصطفیٰ کی لاش کیماڑی کے علاقے میں واقع قبرستان میں دفن ہے۔ اور ناظرین، کیا پولیس مصطفیٰ قتل کیس کی الجھی ہوئی گتھی سلجھا پائے گی؟ 40 روز تک لاپتہ رہنے والے نوجوان مصطفیٰ کو اغوا کے بعد قتل کیا گیا۔ گرفتار ملزم ارمغان کی پولیس پارٹی پر فائرنگ کی ویڈیو سٹی 21 پر ارمغان کی جانب سے جدید اسلحے سے پولیس پر فائرنگ کی گئی، جبکہ ویڈیو میں فائرنگ کی آوازیں اور وردی میں ملبوس اہلکار واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ٹریفک حادثات کو روکنے کے لیے سیاسی جماعتوں اور ٹرانسپورٹرز کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ واقعات کو لسانی رنگ نہ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ اشتعال انگیز بیانات پر کارروائی ہوگی۔ فاروق ستار نے جاں بحق افراد کے لیے معاوضے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے عاجز جمالی۔ ڈمپرز اور ٹینکرز دندناتے ہیوی ویکلز خوف کی علامت بن گئے۔ اسٹیک ہولڈرز کے اجلاس میں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن، صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار، MQM کے علی خورشیدی، ANP کے شاہی سید، جماعت اسلامی کے مسلم پرویز اور ٹرانسپورٹرز کے مختلف نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں حادثات کی روک تھام اور اشتعال انگیز بیانات نہ دینے پر اتفاق ہوا۔ اجلاس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ حادثات ایک انتظامی مسئلہ ہے جس کو لسانی اور نفرتوں کا رنگ دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ گزشتہ روز 15 شرپسندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ نہ ہی کوئی سیاسی ایشو ہے، نہ ہی کوئی لسانی ایشو ہے، نہ ہی اس کا کسی قسم سے کوئی رنگ جو ہے وہ دیا جائے۔ اور سب پارٹی سے مجھے خوشی ہوئی جس طریقے سے جماعت اسلامی نے یہ بات بڑی کلیئر کی، MQM نے بات بہت کلیئر کی، اور کل جو ہے جن لوگوں نے وہ جلاؤ گراؤ میں ملوث تھے 15 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ MQM پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے حادثات کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی تجویز دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضے دیے جائیں۔ میرے بیانات پر سعدیہ جاوید کے رد عمل سے حکومت کی غیر سنجیدگی نظر آتی ہے۔ جن کی جانوں کا، معصوم اور بے گناہ شہریوں کی جانوں کا اختلاف ہوا ہے، تو ہمیں وہاں تک ان تک پہنچنا چاہیے، ریچ آؤٹ کرنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں میرے ساتھیوں نے یہ واضح کیا ہے اس کانفرنس میں کہ اس مسئلے کو نہ یہ لسانی مسئلہ ہے، نہ اسے لسانی مسئلہ بننا چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ANP کے شاہی سید نے کہا کہ حادثے کو صرف حادثہ سمجھنا چاہیے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، کسی قومیت یا لسانیت کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، نہ حادثات پر سیاست کی جائے۔ اب اس میں سارے کیسز جو ہو رہے ہیں یا جو ایکسیڈنٹ ہوئے، جو واقعات ہوئے، اس کو دوسرا رنگ نہ رہے، یہ انتظامی مسئلہ ہے، انسانی مسئلہ ہے، اس پہ سب کو دکھ ہے، سب پہ افسوس ہے۔ جو لوگ شہید ہوئے ہم ان کے ساتھ ان کے درد میں غم میں شریک ہے، اور دعا بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ آئندہ نہ ہو۔
खासकर जो हैवी ट्रांसपोर्ट है, रात का टाइम दिया हुआ है, रात भी चला है, उसूल भी चला है। जो लोग उसूल की खिलाफ वर्जी करे, खुद हमको ला भाई पुलिस वाले उसको अरेस्ट करे, गिरफ्तार करे, न छोड़े। जमात इस्लामी कराची के नायब अमीर मुस्लिम परवेज़ ने कहा कि हुकूमत हादसात को रोकने के लिए मौसर इकदाम करे। ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे लियाकत महसूद ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स हुकूमत के साथ हर ताउन करने के लिए तैयार हैं। इजलास में एडिशनल आई जी कराची जावेद आलम उडो, DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह समेत आला हुकाम ने भी शिरकत की। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज़ जमाली, कराची। आगे बढ़े और आपको बताएं, ताजिरों की जानिब से मार्केटों को शहर से बाहर मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी गई है। सरपरस्त आला ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी का कहना है कि डंपर लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद में भी चलते हैं, कोई हादसा नहीं होता। चेयरमैन कराची होलसेल ग्रॉसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले, हुकूमत अगर जगह दे तो मार्केटें शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। छात्रों से कीमती जानों का ज़िया मामूल बन गया। ताजिरों का सूरत हाल पर तफ्तीश का इजहार। हैवी ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए बड़ी तजवीज़। आला ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी का कहना है कि ये शहर बगैर कोड ऑफ कंट्रोल के चल रहा है। डंपरों के लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद में हादसे नहीं होते, कराची का ही शहरी क्यों मरता है? टिम्बर, स्टील मार्केट और जोड़िया बाजार को शहर से बाहर होना चाहिए ताकि हैवी ट्रैफिक की शहर में आमदोरफ्त कम हो सके। आपकी जितनी भी होलसेल मार्केट है, टिम्बर मार्केट की शहर में क्या ज़रूरत है? आप शहर से बाहर ट्रांसपोर्ट करें, आप टिम्बर मार्केट में करें। मैं कहता हूँ 12 दफ़ा मैं बात कर चुका हूँ कि भाई आप हमें बाहर जगह दें, पेमेंट दे रहे हैं हम आपको, मार्केट बाहर शिफ्ट करें, स्टील मार्केट बाहर शिफ्ट करें, जोड़िया बाज़ार आप बाहर शिफ्ट करें। आपने सब्जी मंडी शहर से बाहर शिफ्ट कर दी ना, तो आप तमाम मार्केटें बाहर शिफ्ट करें तो ताकि शहर के ऊपर लोड कम हो जाए। चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि अगर सिंध हुकूमत जगह दे तो मार्केटें शहर से बाहर मुंतकिल हो सकती हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट बनने के अमल में शफाफियत लाई जाए। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि घर के घर यतीम हो जाते हैं और उनके घर वाले बहुत रुल जाते हैं और ये सदमा बहुत बड़ा होता है। हमारी नौजवान नस्ल इसको सोचे कि हमें आहिस्ता चलाना है और देख के चलाना है। ताजिरों ने कहा कि ट्रैफिक हादसे में इजाफे की वजह नाअहली है। अगर लाइनों के जरिए पानी मिले तो वाटर टैंकर से हलाकतें ना हो। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और हादसात कैसे रोकें, कराची के बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी शिरकत। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, एडिशनल IG और DIG ट्रैफिक भी शरीक हुए। हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम पर मुशावरत की गई। शहर में जलाओ घेराव की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब ग्लास टावर में लगने वाली आग पर 3 घंटों की जिद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया है। ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। वाकई में 30 से ज़ायद दुकानों में मौजूद लाखों का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। 3 तलवार ग्लास टावर में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने मार्केट की पहली मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां और रेस्क्यू इदारे मौका पर पहुंचे। मार्केट में मौजूद 30 से ज़ायद दुकानें जल गईं, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगते ही दुकानदारों ने अपनी मदद के तहत अपनी दुकानों से सामान को बाहर निकाला। धुआं भरने से दुकानदार और फायर फाइटर मुतासिर हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। तकरीबन 3 घंटों की कोशिश के बाद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी हैं। और नाजरीन, 3 तलवार के करीब ग्लास टावर में भी आग लग गई। 30 से ज़ायद दुकानें, भारी सामान राख बन गया। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने आग बुझाई, जबकि एक फायर फाइटर समेत 4 अफराद धुएं से मुतासिर भी हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि 3 तलवार के करीब ग्लास टावर में आग लग गई है। 30 से ज़ायद दुकानें, भारी सामान राख बन गया, जबकि फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। आपको बताते चलें, इस आग से मुताल्लिक के 3 तलवार के करीब ग्लास टावर में आग भड़क उठी। 30 से ज़ायद दुकानें, भारी सामान राख बन गया, जबकि फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आपको बताएं कि सदर लकी स्टार के करीब सर्जिकल गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुकाम ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है, जबकि लाखों रुपए के सर्जिकल आलात जलकर खाकिस्तर हो गए।
फायर ऑफिसर जफर अहमद के मुताबिक गोदाम रिहायशी इमारत के नीचे कायम किया गया था। धुएं के बायस मुश्किलात पेश आईं। ये जायद नारी सदर के सामने जुम्मा गली है। यहाँ पे हमें बिल्डिंग में आग लगने की इत्तला मिली है। फौरी तौर पे फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने रिस्पॉन्ड किया है। बिल्डिंग के नीचे रिहायशी इमारत के नीचे गोदाम बने हुए थे, सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी दुकान के अंदर आग थी। लिहाजा जब पहुंचे तो धुआं ज़्यादा होने की वजह से दुश्वारी का सामना हुआ। तकरीबन 1.5 घंटे में आग पर काबू पा लिया। कितना सामान होगा और कितना नुकसान हो गया होगा? सामान तो काफ़ी है, लिहाजा फायर ब्रिगेड ने पहुँच के मजीद सामान को। आपको बताएं कि डेप्यूटी मेयर समेत 200 घरों में 3 दिन से अंधेरों का राज बरकरार है। सलमान टावर की बिजली तीसरे रोज भी बहाल ना की जा सकी। बिजली बंद हुई तो पानी भी खत्म हो गया, जबकि इलाका मकीनों का शिकायत के बावजूद सुनवाई ना होने का शिकवा। और नाजरीन, डिफेंस क्लिफ्टन के इलाकों को भी तजावुजात करने वालों की शामत आ गई है। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड और पुलिस का कोरंगी रोड पर मुश्तरका क्रैकडाउन। दर्जनों ठेले, पथारे और कैबिन कब्जे में ले लिए गए। हुकाम कहते हैं कि जहां भी तजावुजात की शिकायत मिलेगी कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। खात्मे के लिए क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड भी मैदान में आ गया। डिफेंस फेस 1 कोरंगी पुलिस के हमरा एक्शन सर्विस रोड, फुटपाथ और गलियों से तजावुजात का खात्मा कर दिया। कार्रवाई के दौरान दर्जनों ठेले, पथारे और केबिन कब्जे में ले लिए। इंचार्ज इन्फोर्समेंट CBC शहजाद के मुताबिक तजावुजात का खात्मा अवामी शिकायत पर किया, मजीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ऑलमोस्ट मतलब हम पहले भी गाहे करते रहते हैं, कोई इतनी ज़्यादा शिकायतें तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जहाँ पे भी है हमने उसको मतलब उसकी रैकी की हुई है। उसके मुताबिक हम मतलब हर रोज़ किसी ना एक इलाके में हम उसका ऑपरेशन करेंगे। CBC के इंचार्ज इन्फोर्समेंट ने तजावुजात के खिलाफ आइंदा की हिकमत अमली से भी आगाह किया और कहा कि ज़ाब्ता शुदा तजावुजात वापस नहीं की जाएंगी और मुसलसल निगरानी की जाएगी। इसमें असल ये है कि ये टेम्परेरी इंक्रोचमेंट होती है, मूवेबल होती है। जैसे अभी हम आए हैं, कुछ लोग दौड़ गए हैं, वो वापस आएंगे, हम इंशाल्लाह सेकंड अटेम्प्ट फिर इन पे करेंगे। दूसरा ये हम ये करते हैं कि हम सामान रिलीज़ नहीं करते हैं। अगर रिलीज़ भी करें तो कम से कम 1 माह का या एक लंबी ड्यूरेशन के बाद करते हैं, ताकि उनको डिस्करेज किया जाए। हमारी इस से काफ़ी हद तक हमने तजावुजात पे कंट्रोल किया है। जो थोड़ी बहुत रह गई इंशाल्लाह हम उसको भी क्लियर करेंगे। बढ़ती हुई तजावुजात शहर में नासूर की शक्ल इख्तियार करती चली जा रही है, जिसके खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने और कवानीन पर अमल दरामद कराने से तजावुजात का फैलाव रोका जा सकता है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स आवाम की मायूसी का बायस बनने लगे हैं। कोरंगी रोड पर वाक़े यूटिलिटी स्टोर पर सरकारी आटा 6 महीनों से गायब है। तेल, घी और चाय की पत्ती भी दस्तयाब नहीं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे वसीम इफ्तिखार। रोड पर वाक़ई यूटिलिटी स्टोर पर सन्नाटों का राज। बुनियादी अशिया गायब, आवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ कंपनियों की दीगर अशिया से शेल्फ भरे नजर आते हैं, लेकिन रोजमर्रा इस्तेमाल की अहम बुनियादी अशिया बिलखुसूस सरकारी आटा 6 माह से गायब है। कंपनी का आटा भी 1 माह से दस्तयाब नहीं। घी और तेल 1.5 माह से मौजूद नहीं, जबकि 1 माह से चाय की पत्ती भी नापैद है। शहरियों का कहना है कि दूर दराज से रमजान के लिए तेल, घी और चाय की पत्ती खरीदने आए थे, लेकिन यहाँ कुछ मौजूद नहीं है। गली मोहल्लों या बाजारों में बुनियादी अशियाए जरूरिया महंगी मिलती हैं। अब आवाम की सहूलत का ये इदारा भी मायूसी का बाइस बन रहा है। आयल लेने के लिए आए थे, यहाँ पे नहीं है। हम पिंडी चौक से आए, वहाँ पे भी दुकानें बहुत हैं, लेकिन सस्ते के लिए यहाँ पे आए खरीदने के लिए। ना चाय की पत्ती है, ये चीज़ें ज़रूरत की होती है हर रोज़ाना की, वही चीज़ ना मिले, फ़ायदा आने का इतनी दूर। ये चीज़ें मिलनी चाहिए ना। यही चीज़ें नहीं मिलती गरीब आवाम को, फिर आवाम क्या करेगी, कहाँ से खाएगी? इससे ये भूख प्यास करे, भूख हड़ताल करे, क्या करे? शहरियों का मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और तेल समेत दीगर रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया फराहम की जाएं, ताकि इनकी मुश्किलात हल हो सकें। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।